everyone, so welcome to you on channel. So in this video we will talk about Java, what is Java, then features of Java, what are the various applications of Java, and then we will talk about what are the various types of Java programs. So this video is for beginners who have just started to learn the Java as their first programming language. So let's start. So before we discuss about Java, first I am writing two different words, computer language and programming language. Now are these two words same or not? Programming language. So one is computer language and second is programming language. Are these two words same? Because these two words are interchangeably used. We can say Java is a computer language, we say Java is a programming language. Are these two words same? See, what is computer language? Computer language is a language that allows humans to interact with computers, to communicate with computers, right? And computer language includes programming language, it includes markup language, query language, or you can say scripting language, yes, script language. So all these languages through which we communicate with computers comes under computer language. So programming language is one of the computer language which is specially designed to write the programs, right? So this deals with only writing the programs. So through programming language, so if I say all programming languages are computer languages, right? It's right, all programming languages are computer language, but all computer language are not programming language, because computer language includes markup, query, scripting and others also, machine language like, fine. So this is the difference. So if I say Java is a computer language, yes, this is also correct, because प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आपका एक कंप्यूटर लैंग्वेज ही है. इफ आई से जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देन इट इज ऑल्सो करेक्ट, right? So that's why we sometimes we use interchangeably. There is a small difference, you should know that. Okay, fine. Now the next is, if you are thinking that why we are learning Java, if you think that Java is outdated because Python has come, everybody is using Python, then why we are learning Java? See, Java is not outdated, still we are using Java in so many fields. Python cannot replace Java completely. It's true that Python has replaced Java in some fields, but they have different fields also. Like in Python we use in AI, artificial intelligence, we use in machine learning, automation, web development. So Python we generally use in all these areas, right? And Java for Android apps, Java is still a main language. So Java is used in Android apps, or you can say other mobile apps also. Then we can say Java is used in online banking, embedded system like washing machine, ACs, right? And e-commerce websites, जो आपका एयरलाइंस का है वेबसाइट, एयरलाइंस का सॉफ्टवेयर है, उसमें भी आपका जावा यूज़ होता है एयरलाइन बुकिंग सिस्टम में, राइट? सो जावा स्टिल यूज इन so many fields. So Java is not outdated, right? So it has Java and Python both have some different fields. In some place Python has replaced Java. This is also true, right? Okay, now who has developed Java? The name is James Gosling. So who has developed Java? James Gosling ने develop किया. कब किया? 1995 में ऑफिशियली रिलीज हुआ था जावा. 1995 में स्टार्ट हुआ था, 1991 में किसने किया था? जेम्स गॉसलिंग ने. व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ जावा? अर्लियर नेम वाज ओक, which was kept after the name of tree which was located in front of James Gosling office. ऑफिस के आगे उसका ओक का ट्री था, तो उसके नाम से जावा का नाम रख दिया. चलो इस लैंग्वेज का नाम रख दिया ओक, जो उसने डेवलप किया था.
लेटर उसका नाम जावा हुआ, पहले उसका नाम ओक था, राइट. सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन. नाउ वी विल डिस्कस features of Java. So let's see. So now we will see features of Java. So what are the features of Java? First is Java is object oriented programming language. What does it mean, object oriented programming language? See, we will not go in that detail. थोड़ा सा बता देते हैं. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? एक होता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज, एक होता है लो लेवल लैंग्वेज. तो फर्स्ट जावा कम्स अंडर हाई लेवल लैंग्वेज, एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस आर अगेन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. पी दैट इज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. पीओपी होता है एक, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है आपका. प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है. हाई लेवल लैंग्वेज को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये आता है आपका 10th में बताते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है. और दूसरा आता है आपका ऊप, जो है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. अब जावा क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. दोनों में डिफरेंस क्या है? बस इतना जान लो कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू प्रोसीजर्स और वी कॉल इट फंक्शंस. एंड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट्स. दोनों में फिर डिफरेंस क्या हुआ? इसमें प्रोसीजर में होता है आपका प्रोग्राम डिवाइड और इसमें ऑब्जेक्ट में, ठीक है. अब इसमें डेटा आपका फ्लो करता है फ्रीली, डेटा फ्लो फ्रीली इन पीओपी. बट इन केस ऑफ ऊप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेटा डज नॉट फ्लो फ्रीली. मतलब डेटा आपका ईजिली अवेलेबल नहीं होता है, डेटा आपका सिक्योर होता है इन ऊप्स, और उसमें ईजिली फ़्लो करता है, कोई भी एक्सेस कर सकता है. इसमें फ़्लो नहीं करता है, इसीलिए आपका जो ऊप्स की लैंग्वेजेस है वो सिक्योर होती हैं, और इसीलिए आपकी जावा सिक्योर है, ठीक है. ये बस इतना ही सफिशेंट है. तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. जावा इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल लैंग्वेज. इसका क्या मतलब हुआ, इसको ध्यान से समझते हैं. जावा इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. व्हाट डू यू मीन बाय प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? प्लेटफॉर्म, सी जावा से पहले जो लैंग्वेज था उसमें क्या होता था कि जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते थे किसी प्लेटफॉर्म, मतलब किसी ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक विंडोज़ में मैंने कोई प्रोग्राम लिखा, ठीक है, तो वो विंडोज़ पे ही रन होगा. यू कैन नॉट रन ऑन दैट अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक लिनक्स हुआ, यूनिक्स हुआ, एंड्रॉयड हुआ, किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप उसे रन नहीं कर सकते, राइट. तो जावा को कर सकते हैं, इसीलिए हम उसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोलते हैं. जावा को जब आप जावा का प्रोग्राम लिखते हैं किसी एक प्लेटफॉर्म पे, फॉर एग्जांपल विंडोज़ में लिखा, आपने उसको कंपाइल किया, आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके उसको रन कर सकते हो. आप यूनिक्स पे जाके उसको रन कर सकते हो, आप लिनक्स पे जाके या आईओएस पे जाके उसको रन कर सकते हैं विदाउट रिकम्पाइलेशन, ठीक है. तो इसके लिए बोलते हैं हम इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और पोर्टेबल लैंग्वेज है. इसी को हम पोर्टेबल भी बोलते हैं, ठीक है. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट नहीं है. इट कैन रन ऑन एनी अदर प्लेटफॉर्म. प्लेटफॉर्म मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो उसके लिए एक टर्म है आपका वोरा, WORA, वोरा. वोरा का मतलब हुआ राइट वंस रन एनीवेयर. इसका भी यही मतलब हुआ, राइट वंस रन एनीवेयर. तो ये टर्म जो है इससे रिलेटेड है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल लैंग्वेज और वोरा एक ही बात है. तो राइट वंस रन एनीवेयर मतलब एक जगह लिखा आपने, किसी एक प्लेटफॉर्म पे लिखा और उसको कहीं भी रन कर सकते हैं. कहीं भी रन मतलब किसी और प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं. हाँ, एक कंडीशन होती है कि उस प्लेटफॉर्म पे आपका जावा इंटरप्रेटर होना चाहिए, JVM होना चाहिए, जिसकी हम बाद में बात करेंगे, ठीक है. अभी फ़िलहाल के लिए यही समझो कि राइट वंस रन एनीवेयर का मतलब है एक प्लेटफॉर्म पे लिखा बट रन उसको किसी और प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते हैं. बट जावा से पहले जो लैंग्वेजेस थे उसमें ऐसा नहीं था. जिस प्लेटफॉर्म पे लिख रहे हैं उसी पे उसको रन करना होता था, ठीक है. सो दिस इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ जावा, दैट इट इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल लैंग्वेज और वोरा, राइट. नाउ द जावा इज केस सेंसिटिव. व्हाट डू यू मीन बाय केस सेंसिटिव?
केस सेंसिटिव का मतलब है इट ट्रीट्स अपर केस और लोअर केस लेटर्स डिफरेंटली, राइट। अगर इसमें कोई हम वेरिएबल ले रहे हैं, सपोज हमने x लिया स्मॉल x और एक कैपिटल X लिखा, उसका मतलब डिफरेंट है। अगर कोई कीवर्ड है इम्पोर्ट, अगर हमने उसको कैपिटल में लिख दिया दैट विल बी रोंग, अगर ऐसे लिख दिया तो वो रोंग हो जाएगा। तो इट ट्रीट्स अपर केस और स्मॉल केस डिफरेंटली। ऐसा नहीं है कि आप किसी में भी लिख दो समझ जाएगा, इम्पोर्ट ही तो है, नो। अगर इम्पोर्ट स्मॉल केस में है तो उसको स्मॉल केस में ही लिखना है। अगर जहाँ कोई वर्ड लेटर कैपिटल में लिखना है तो कैपिटल में ही लिखना है, ठीक है, समझ आया। नाउ द जावा यूजेस यूनिकोड कैरेक्टर सेट। अब ये कैरेक्टर सेट्स क्या होते हैं? सी, एक नाम सुना होगा आपने, एस्काई, ASCII, फुल फॉर्म इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एस्काई कोड क्या होते हैं? ये एस्काई कोड होते हैं जैसे हम कुछ भी कीबोर्ड में हम टाइप करते हैं, व्हेन वी प्रेस एनी की फ्रॉम द कीबोर्ड, कोई भी की हो, अल्फ़ाबेट हो, डिजिट हो, सिंबल हो, तो वो आपका मेमोरी में स्टोरेज तो कैसे होता है? बाइनरी की फॉर्म में होता है ना। जब आप कोई अल्फ़ाबेट प्रेस कर रहे हैं तो क्या होता है कि वो आपका बाइनरी में स्टोर हो, कैसे कन्वर्जन होता है? सी, व्हेन यू प्रेस एनी की तो वो क्या होगा, सबसे पहले सिस्टम उसका जनरेट करेगा एस्काई कोड। जैसे सपोज मैंने ए को प्रेस किया तो कैपिटल ए का एस्काई कोड होता है 65। तो एवरी कैरेक्टर या एवरी की ऑन द कीबोर्ड हैज़ इट्स एस्काई वैल्यू, राइट। तो उसका कुछ वैल्यू है 65, तो 65 जनरेट हुआ, राइट। फिर वो बाद में आपका बाइनरी कन्वर्जन होगा, उसको बोलते हैं कैरेक्टर एनकोडिंग। दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट एक्चुअली में क्या होता है, पहले जैसे हमने कोई की प्रेस किया उसका ये कोड जनरेट हो गया, फॉर एग्जांपल 65। फिर कैरेक्टर एनकोडिंग बोलते हैं, जो कौन करता है? एनकोडर डिकोडर। वो क्या करता है? इसको कन्वर्ट करता है बाइनरी की फॉर्म में, 0-1 की फॉर्म में, तो वो आपका मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो हम बात करें एस्काई, तो एस्काई में आपके सिर्फ इंग्लिश वाले अल्फ़ाबेट्स, मतलब जो इंग्लिश में यूज़ होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड हैं सब एस्काई कोड में। और इसमें है आपके 128 कैरेक्टर्स हैं जिसकी वैल्यूज मेंशन है। एक चार्ट बना होता है एस्काई कोड्स का, तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, सबका एक एक वैल्यू होगा। 0 to 9 का वैल्यू होगा, आपके वेरियस सिंबल्स का वैल्यू होगा, जो भी हम की प्रेस कर रहे हैं उसका वैल्यू होगा कुछ। और कितने होते हैं ये? 128 कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपके एस्काई कोड हैं, इसमें यूज़ होता है यूनिकोड। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? एस्काई कोड्स रिलेटेड टू इंग्लिश ओनली, लिमिटेड टू इंग्लिश ओनली, एंड यूनिकोड कैरेक्टर सेट्स में क्या है? ऑल वर्ल्ड की जितनी लैंग्वेजेस हैं उसके कैरेक्टर्स होते हैं। तो इसमें कितने कैरेक्टर्स होंगे? इसमें आपके 1 लाख से ऊपर है, लैक्स में है, अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 1.1 मिलियन है। तो इतने सारे कैरेक्टर्स के कोड्स दिए हुए हैं, तो इट्स अ वास्ट और वाइड रेंज ये आपका। और यूनिकोड कैरेक्टर सेट की वैल्यू देखोगे थोड़ी वेरी करेगी, जहाँ देखोगे एग्जैक्ट सब, कहीं कुछ दिखाएगा, अभी कहीं 1.1 मिलियन दिखाएगा, कहीं 1,60,000 दिखाएगा, तो इट वेरीज। मतलब है, आप बस इतना जान लो कि आपके लैक्स में है कैरेक्टर्स, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू इतना याद करने का भी ज़रूरत नहीं, ये लैक्स में है, इसका है 128 है, ठीक है। तो इट्स अ वाइड रेंज। तो हम जावा में कौन सा कैरेक्टर सेट यूज़ करते हैं? यूनिकोड। तो एस्काई कोड इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर सेट, ठीक है। चलिए, नाउ द नेक्स्ट है जावा इज़ अ सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिक्योर एज वी डिस्कस्ड अर्लियर बिकॉज इट इज़ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक तो ये रीज़न भी है, ठीक है। तो जो डेटा है इसमें फ्रीली फ्लो नहीं करता है, हाइड करके रखता है, तो इसीलिए भी ये एक सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये मेन फीचर्स है। बाकी जावा एक सिंपल लैंग्वेज है, इट डजेंट इंक्लूड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जो पहले लैंग्वेजेस थी, C++ में थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी रहता था, इसमें वो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। उसके बाद आया पहले C, फिर C++, फिर C# आया था बीच में, और उसके बाद आपका ये जावा है। तो जावा में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है उन लैंग्वेजेस की, तो इट्स अ सिंपल लैंग्वेज। सो दीज आर द 5 मेन फीचर्स ऑफ जावा। आई होप इट इज़ क्लियर। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ जावा प्रोग्राम्स। सो नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ जावा प्रोग्राम्स।
So there are mainly two types of Java programs, application programs and the Applex program. First we will talk about application. So whatever programs we will make in Java in class 8, 9, 10, all will be applications only. Fine. क्या होते हैं ये application? Java programs that can be executed independently without using the web browser. जिसको हम इंडिपेंडेंटली रन कर सकते हैं अपने सिस्टम में, जिसमें वेब ब्राउज़र की कोई ज़रूरत नहीं होती, विदाउट यूजिंग द वेब ब्राउज़र. वेब ब्राउज़र की कोई ज़रूरत नहीं होती. विदाउट वेब ब्राउज़र वी कैन एग्जीक्यूट इट, राइट, वी कैन रन इट. सेकेंड है, इट रिक्वायर्स अ मेन फंक्शन फॉर इट्स एग्जीक्यूशन. इसमें हर एक प्रोग्राम में आपका एक फंक्शन होना चाहिए. कौन सा फंक्शन होना चाहिए? मेन, जिसका नाम मेन होगा. वो देखेंगे जब हम प्रोग्राम सीखेंगे बनाना. हर प्रोग्राम में, हर जो भी जावा प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें आपका मेन फंक्शन होगा. ठीक है. और इसका एक और नाम है स्टैंड अलोन प्रोग्राम्स भी बोलते हैं. स्टैंड अलोन. स्टैंड अलोन मतलब इसके लिए कोई वेब ब्राउज़र की जरूरत नहीं है, अपने आप इसको रन कर सकते हैं मशीन पे. स्टैंड अलोन प्रोग्राम्स. ठीक है. सो ये हो गया आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम. अभी एप्लेक्स क्या होते हैं? एप्लेक्स एक्चुअली अभी यूज़ होते ही नहीं है. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन द वर्ड ऑब्सोलीट. ऑब्सोलीट मतलब आउटडेटेड है, अभी यूज़ ही नहीं करते हैं इसको कोई भी. बट एज इट इज़ गिवन इन योर बुक्स, इन फ्यू बुक्स, अभी मोस्टली बुक्स से भी हटा दिया है. कुछ बुक्स में नाम दिखेगा, एग्जाम में इट कैन बी आस्क्ड. तो दैट्स व्हाई जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन. तो ये किस लिए यूज़ होते थे एप्लेक्स? एप्लेक्स आर यूज फॉर इंटरनेट पर्पस. हमें इंटरनेट पे जैसे कोई छोटा सा गेम बनाना है, ठीक है, या फिर हमें कोई एप्लीकेशन या एनिमेशन या इंटरेक्टिव एप्लीकेशन छोटा सा कुछ भी बना के उसको वेब पेज में डाल देना है. वेब पेज में इंक्लूड होगा कोई छोटा सा गेम या छोटा सा एप्लीकेशन, इंटरेक्टिव गेम होगी. ठीक है. तो वो हम एप्लेक्स के थ्रू बनाते थे. तो अभी क्या हुआ ऐसा कि नहीं, पहले देख लेते हैं एप्लेक्स क्या होते हैं. दीज आर स्मॉल जावा प्रोग्राम्स दैट आर डिज़ाइन टू बी इंक्लूडेड विद HTML वेब डॉक्यूमेंट. अब HTML वेब डॉक्यूमेंट में क्यों हम इंक्लूड करते थे? क्योंकि हमें इंटरनेट पे रन करना है, और इंटरनेट हम कैसे देखते हैं? वेब ब्राउज़र पे. वेब ब्राउज़र की लैंग्वेज क्या है? एज वी नो HTML हम ऑलरेडी कर चुके हैं. तो वेब ब्राउज़र को HTML समझ आती है, तो हम HTML वेब डॉक्यूमेंट जो लिखते थे उस पेज के लिए, उसी में जावा एप्लेक्स का कोड डाल देते थे. ठीक है. तो क्या लिखा है? दैट डिज़ाइन टू बी इंक्लूडेड विद HTML वेब डॉक्यूमेंट. तो जो भी HTML की कोडिंग हम करते हैं उसमें एप्लेक्स का कोड डाल देते थे. दे आर डिज़ाइन फॉर इंटरनेट पर्पस. इंटरनेट पर्पस के लिए यूज़ होता था. दे नीड जावा एनेबल्ड वेब ब्राउज़र. कौन से वेब ब्राउज़र एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ होते थे, रन करने के लिए इनको? जावा एनेबल्ड वेब ब्राउज़र, राइट. अब जावा एनेबल्ड वेब ब्राउज़र में बहुत सारे वेब ब्राउज़र थे, बट अभी सभी ने बंद कर दिया ऑलमोस्ट. अभी कह सकते हो इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो वही कोई यूज़ नहीं करता. तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जावा एनेबल्ड वेब ब्राउज़र है. तो अभी जावा एप्लेक्स कम्प्लीटली आपका बंद कर दिया. मोजिला फायरफॉक्स ने बंद कर दिया, दूसरे आपके क्रोम सब ने बंद कर दिया. जावा एप्लेक्स ब्लॉक कर दिया है, मतलब उसमें आप रन ही नहीं कर सकते. क्यों ब्लॉक किया, क्यों नहीं रन कर सकते? फॉर सिक्योरिटी पर्पस. जावा एप्लेक्स में कुछ सिक्योरिटी लूप होल्स थे, तो इसी कारण से सभी वेब ब्राउज़र ने इसको बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया. राइट. यू कैन नॉट रन जावा एप्लेक्स ऑन ब्राउज़र. और अभी हमने जावा एप्लेक्स को ही यूज़ करना छोड़ दिया है. कोई जावा एप्लेक्स यूज़ नहीं करता. उसका अल्टरनेट क्या है? अब कैसे हम वेब पेज पे या इंटरनेट पे ये सब डाल सकते हैं जो पहले जावा एप्लेक्स की हेल्प से डालते थे. अब हम यूज़ करते हैं बजाय एप्लेक्स के जावा स्क्रिप्ट. वी यूज़ जावा स्क्रिप्ट, वी यूज़ HTML5 एंड CSS3. ठीक है. तो ये इसके ऑल्टरनेटिव हैं जावा एप्लेक्स के, विच वी करेंटली यूज़. अभी ये यूज़ नहीं होता है. तो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है एप्लेक्स होता क्या है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. सो दीज वर सम बेसिक्स ऑफ जावा. तो दैट्स इट इन दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.